Good morning, everyone. I'm starting now. Yesterday we have done enthalpies of phase transition, correct? In phase transition, we have studied enthalpy of fusion, then vaporization, freezing, sublimation, condensation. Then we have studied enthalpies of molecules, atoms, or the ions. In that, we have studied क्या पढ़ा enthalpy of ionization, then enthalpy of electron gain enthalpy and atomization, enthalpy of atomization. Clear? Today we will start with third part, that is enthalpy of solution. Okay, we have to start today with the enthalpy of solution, right? देखो already हमने पढ़ा है what is solution. It is a mixture of solute plus solvent, correct? So what they have said, the enthalpy of the solution is the enthalpy change in the process in which 1 mole of substance is dissolved in specified amount of water or specified amount of solvent. Okay, that is called as enthalpy of solution. Matlab, when you are going to take a solute and if you put it in the water or any solution or any solvent, sorry, that time whatever the change in the enthalpy you are observing is called as enthalpy of solution. Okay, so the enthalpy change that accompanies by the process in which 1 mole of pure substance is dissolved in the specified amount of solvent. Why they have said specified amount of solvent? ताकि आपको एक प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन मिले, है ना? आप कितना भी सल्यूट लोगे, कितने भी सॉल्वेंट में डाल दोगे तो ऐसा नहीं चलता है. You will not get a proper concentration. So you have to take a specified 1 mole of the solute which has to be dissolved in the specified amount of solvent, and that is called as enthalpy of solution. Say I am taking here an example of NaCl solid. It is put in the aqueous solution. It will form NaCl aqueous. अब इसका मुझे बताओ enthalpy of solution positive होगा कि negative होगा? You are dissolving something, correct? So that time it will be क्योंकि जब आप dissolve कर रहे हो तो ions break हो रहे हैं ना, Na plus Cl minus break हो जाएगा. It is getting dissolved. So it will be positive kilojoules per mole. इतना clear हो गया सबको अच्छे से? Okay. If you will take enthalpy of infinite dilution, what is infinite dilution बच्चों? Infinite dilution मतलब zero concentration. You are not going to consider any concentration over here. So that is called as enthalpy of infinite dilution. तो ये क्या रहेगा? When the 1 mole of substance is dissolved in the infinite amount of solvent. मतलब आपने एक मुट्ठी नमक लिया, उसको जाके समुंदर में डाल दिया. That is called as infinite dilution. There is no concentration only. That is zero concentration. That is called as enthalpy of infinite dilution. वापस से बोलती हूँ. What is enthalpy of solution? When the 1 mole of the substance is dissolved in the specified amount of solvent. So whatever the enthalpy change you are observing, delta H, that is called as enthalpy of solution. क्योंकि solute को किस में डाला? Solvent में डाला. ठीक है? What is infinite dilution? When the 1 mole of the substance is dissolved in the infinite amount of solvent. Means your solvent ka amount is infinite. So that time zero concentration is observed, which is called as enthalpy of infinite dilution, infinite solution. ठीक है? अब उसके बाद क्या है? Ionic compound dissolves in the water in 2 steps.
देखो जैसे मैंने भी NaCl का बताया क्या होगा, पॉजिटिव कि पॉजिटिव होगा ना। अब देखो पॉजिटिव ना? NaCl था, NaCl पानी में जाके क्या, हाँ यस, Na प्लस NCl माइनस ब्रेक हो गया। हमने पानी किस नियत से डाला, NaCl को ब्रेक करने की नियत से, उसको डिसॉल्व करने की नियत से, करेक्ट। सो व्हेन इट इज गेटिंग डिसॉल्व्ड इट विल बी पॉजिटिव, समझा? यस। हाँ, अभी देखो क्या बोला है नेक्स्ट स्टेप, एन आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व्स इन द वाटर इन टू स्टेप। मतलब आपने क्या लिया है, आयोनिक कंपाउंड लिया है एंड यू आर डिसॉल्विंग इट इनटू द वाटर। तो ये आपका सोल्यूट है, ये आपका सॉल्वेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, पहले भी बताया था, सपोज MX है आपका आयनिक सॉल्वेंट सोल्यूट, सॉरी, तो इट विल फॉर्म Mg M plus X minus, everything should be present in the gaseous state, ठीक है। तो इस टाइम पर इसको बोलते हैं enthalpy change for the step which is called as crystal lattice. Crystal lattice मतलब this crystal has been broken down into two ions. इसको हम लिखेंगे यहाँ पे delta LH. What it is called? It is called as enthalpy of crystal lattice. अभी यहाँ पे भी देखो बॉन्ड ब्रेक हो गया ना, ब्रेक हो गया मतलब you are adding energy, it will be always positive. First step समझा? What I said, ions are separated from the molecules to give you these positive and negative ions. So this time it is called as enthalpy of lattice energy or enthalpy of crystal lattice, ठीक है। It will be always positive. अभी second step में क्या बोला है, in the second step what is going to be happen, the ions are hydrated with the water molecules surrounding them. Last time बताया था मैंने, Mg plus is surrounded by water, X minus will also be surrounded by water, correct। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, it is called as enthalpy of hydration, क्योंकि पानी था ना इधर पे, तो enthalpy of hydration। अब यहाँ पे वापस क्या कर रहे हैं हम लोग, डिसॉल्व कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, है ना। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, इट विल बी ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है, ये ध्यान में रखो, दिस विल बी ऑलवेज नेगेटिव, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन विल बी ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। तो फाइनली व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, इट इज नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टल लैटिस प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, स्मॉल h, enthalpy of hydration। इस तरह से you can calculate enthalpy of solution। आया समझ में? वापस से बताती हूँ, देखो ध्यान दो एकदम। What is enthalpy of solution? If you want to make a solution, you need a solute and a particular amount of solvent, correct? So what I have said, when the enthalpy change that accompanies the process in which 1 mole of substance is dissolved in a specific amount of water or the solvent, you can say, ठीक है। What is infinite dilution, enthalpy of infinite dilution? The enthalpy change that accompanies the process in which 1 mole of the substance is dissolved in the infinite amount of solution, ठीक है। This dissolution in the water takes place in two steps. What is the first step? Ions will break up. It is called as enthalpy of crystal lattice. It will be always positive. Next is enthalpy of hydration. आपका Mg M plus ions water से surround हो जाएगा. X minus is also surrounded by water. It is called as enthalpy of hydration. So what you will do? Solution is equals to enthalpy of crystal lattice plus enthalpy of hydration. इतना ही है. Is it clear? Yes ma'am। Any questions बच्चों? enthalpy of solution सबको समझ आ गया अच्छे से? ठीक है, चलो लिखो ये अभी एग्जांपल फटाफट। कौन सा लिखना है? NaCl वाला, ठीक है, मैं लिखाती हूँ, चलो लिखो फटाफट।
एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन डालो हेडिंग, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ब्रैकेट में इधर लिखो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा डेल्टा सॉल्यूशन H. Ready? Write down the enthalpy change that accompanies the enthalpy change that accompanies a process in which 1 mole of substance Ma'am, can you repeat? is yes enthalpy change, sorry, क्या बोला मैंने, enthalpy change that accompanies a process in which enthalpy change that accompanies a process in which 1 mole of a substance is dissolved in 1 mole of a substance is dissolved in specified amount of solvent. 1 mole of a substance is dissolved in specified amount of solvent is called as enthalpy of solution. Is called as enthalpy of solution. ये example लिखो NaCl वाला. NaCl solid plus aqueous gives you NaCl aqueous. So enthalpy of solution will be positive kilojoules per mole. समझा ना ये कि अच्छे से लिखूं? NaCl solid plus aqueous, NaCl aqueous, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? आगे ही लिखना है इसके. Delta H of solution is equals to positive kilojoules per mole. मिस ये एक्वेस क्या है? वाटर है? Water, yes. Aqua means water. Correct. हो गया बच्चों? Next heading लिखो enthalpy of solution at infinite dilution. Next heading enthalpy of solution at infinite dilution. Infinite dilution मतलब क्या होता है बच्चों? Zero concentration. Correct? Enthalpy of solution at infinite dilution. मिस ये बोलू? इसके अंदर ही आएगा ना एंथैल्पी ऑफ इसके सॉल्यूशन? अंदर ही आएगा. Yes, उसके अंदर ही आएगा. Correct. बोलू? हाँ मैम. Okay. Enthalpy of solution at infinite dilution is the enthalpy change. The enthalpy change when 1 mole of substance is dissolved in infinite amount of solvent. 1 mole of substance is dissolved in infinite amount of solvent. ठीक है? मैम रिपीट करो फिर से.
The enthalpy change of solution at infinite dilution is the enthalpy change when 1 mole of substance is dissolved in infinite amount of solvent is Okay. dissolved in infinite amount of solvent. मिस ये सब्सटेंस मतलब सल्यूट हो गया ना? Solute, yes, it can be any solute. ठीक है, अब उसके नीचे नेक्स्ट हेडिंग लिखो, इसके अंदर ही आएगा नेक्स्ट हेडिंग. Ionic compounds dissolved in the water in 2 steps. Ionic compound dissolves in water in 2 steps. Right, on step number 1, Mx gives you Mg plus gaseous and Cl minus gaseous. इसको क्या बोलते हैं? Separation. है ना? It is called as separation. Ionic solvent, ionic compound dissolves in Water in 2 steps. क्या अब ये फिर लिखो. ये लिखना है ना उसके बाद? हाँ, फिर ये लिखना है Mx gives you Mg plus and X minus enthalpy change for this step is called as crystal lattice enthalpy. Enthalpy change for this step is called as crystal lattice enthalpy. Crystal lattice enthalpy. It is represented by delta LH. It is represented by delta LH, which is always positive. Underline karo, which is always positive. Point number 2. Ions are hydrated with water molecules surrounding them. Ions are hydrated with water molecules surrounding them. चाहिए तो ऐसे लिखो, example M plus along with X molecules of water, what it will form? M is surrounded by X molecules of water. Then we have X gaseous plus Y molecules of water will give you M H2, which is surrounded by Y molecules of water. मतलब क्या हो गया? M के सब जगह पानी आ गया, X के सब जगह पर भी पानी आ गया. Miss, can you repeat the sentence, please? ये जो लिखा है वही लिखना है. मैम थोड़ा कैमरा ऊपर हो गया?
Write down. The enthalpy change for this step is called as enthalpy of hydration. The enthalpy change मिस ये for HY मिस ये क्या लिखा है? this number of water molecules. X molecules of water, Y molecules of water. मतलब n number of water molecules के साथ they can be surrounded. मतलब ये मिस जो वो n नहीं, plus मिस आपने ये है, हाईलाइट किया है ना, ये बॉक्स किया है ना आपने, तो वहां पर ये लास्ट नहीं मिस, उसके ये ऊपर ऊपर मिस, ये ऊपर उसके मिस, ये ऊपर वाला ये लाइन। हाँ हाँ ये मिस, ये मतलब मैं ये मिस बता रही थी कि m plus is surrounded by water. ऐसा समझा? वाटर से सराउंड हो गया और x मिस minus is ये also लिखा है ना surrounded आपने, by डेल्टा water. सॉल्यूशन H इज इक्वल टू उसके डेल्टा ऊपर L वाला ना, H प्लस ये वाला ना, डेल्टा। हाँ मिस, नहीं नीचे, उसके नीचे। ये हाँ मिस, ये राइट हाँ राइट में, बताती हूँ ना, क्या है बताती हूँ, वो ये हाइड्रेशन हाँ है, मिस बताती वो। हूँ, वो मत लिखो अभी, रुको रुको, इसके बाद वाला स्टेप है वो। ये लिखा क्या है पहले ये बताओ, ये लिख के हो गया? हाँ मिस, हाँ, उसके बाद देखो, द एंथैल्पी ऑफ दिस स्टेप is called as enthalpy of hydration, delta hydration H. The enthalpy of this step is called as enthalpy of hydration, delta hydration H. उसके बाद लिखो therefore enthalpy of solution, हाँ ये लिखने के बाद उधर लिखना, इसके आगे लिखना it is always negative. ये हाइड्रेशन लिखोगे ना, उसके बाद लिखना it is always negative. उसके बाद लिखो delta H of solution is equals to delta H of lattice energy plus delta H of hydration. ये आपका इक्वेशन हो गया. It is always a sum of crystal lattice enthalpy and enthalpy of hydration. मिस ये जीरो कभी आएगा? Zero? कौन सा मिस जीरो? मतलब ये सोल्यूशन, मिस ये सोल्यूशन है ना, डेल्टा सोल्यूशन H, वो जीरो कभी आएगा? जीरो क्यों आएगा? कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज तो होगी ना. If you are adding some solute into the solvent, there will be some addition or the evolution or the इसके solution होगा, एनर्जी होगा, तो जीरो नहीं आएगा वो कभी. It will be giving you some values always. समझा? हाँ सोल्यूशन मिस, का जीरो समझा। कब आता है? जब वो आइडियल सोल्यूशन, हमने पढ़ा था देखो सोल्यूशन वाले चैप्टर में, आइडियल सोल्यूशन होता है तो डेल्टा V विल बी जीरो, डेल्टा H विल बी जीरो. आइडियल सोल्यूशन तो बेसिकली पॉसिबल ही नहीं है. तो whenever you are going to dissolve this, there will be some evolution, absorption, ठीक है, हाइड्रेशन, कुछ ना कुछ एनर्जी होती ही है. ठीक है, हाँ मिस, so it will be never, it can never be zero. चलो बच्चों, इतना सबको समझ आ गया? यहाँ पे आपका एक टॉपिक खत्म हुआ. Now today we will start with a new topic also, which is called as thermochemistry. ठीक है, लोगों को मैं अभी पूरा थ्योरी पढ़ा डालती हूँ, बॉन्ड एंथैल्पी और फिर न्यूमेरिकल्स लेती हूँ, हेस लॉ तक पढ़ाती हूँ. पेज नंबर 80 तक पढ़ाना पड़ेगा अभी, उसके बाद न्यूमेरिकल्स ले सकते हो. मिस न्यूमेरिकल्स तो ना, अभी नहीं ले सकते ना बच्चा, अभी आधा अधूरा चीजें सिखाया है. हाँ मिस ओके। देखते हैं, शाम को देखते हैं, ठीक है? अगर हो गया ना थोड़ा तो शाम को लेती हूँ, क्योंकि ये आधे अधूरे टॉपिक्स हो गए, फिर वो सब मिक्स न्यूमेरिकल्स है, मतलब इसका उसका सब मिक्स करके, तो आधा समझोगे तो आधा डेटा ही समझ में आएगा, आधा नहीं समझ में आएगा. ठीक है, चलो एवरीबॉडी पे अटेंशन. थर्मोकेमिस्ट्री शाम को देखती हूँ, अगर ये हो गया ना तो शाम को लेती हूँ. नेक्स्ट इज थर्मोकेमिस्ट्री.
Please pay attention. Thermochemistry, or it is also called as enthalpy of chemical reaction. ठीक है? What is thermochemistry? It is dealing with enthalpy change in the chemical reaction. मतलब जब आप कोई chemical reaction करते हो तो वो टाइम पर किस तरह की एनर्जी चेंजेस होती है, that we are going to study in this. ठीक है? So we will study here enthalpy of chemical reaction. Enthalpy of chemical reaction, which is written as delta RH. ठीक है? This we will study. अभी देखो what we are going to do here. एक मिनट. We will consider here an equation which is A of A plus B of B gives you C of C and D of D. ठीक है? तो अब इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे देखो. हाँ, डेल्टा आर एच इज इक्वल्स टू कैसे लिखेंगे, C ऑफ C, मतलब ये जो है ना C स्मॉल कैपिटल C, एंथैल्पी ऑफ C जो स्मॉल ABCD है, दे आर रिप्रेजेंटिंग द कोएफिशिएंट्स, प्लस D H ऑफ D, ये कंप्लीट हो गया प्रोडक्ट, माइनस A H ऑफ A plus B H of B. So in short, can I say it is nothing, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, where small a b c d are nothing but the coefficient and capital H A B C D ये सब क्या है, molar enthalpies of A B C D respectively. So in short, I can write down here enthalpy of reaction is nothing but summation of enthalpy of product minus summation of enthalpy of reactants. Am I right? Summation का मतलब क्या होता है, sum. Yes or no? तो जितने भी प्रोडक्ट है उनके एंथैल्पी का प्लस उसमें से माइनस करना है जितने भी रिएक्टेंट है उनके एंथैल्पी का ये एडिशन. दिस इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन. This is called as enthalpy of reaction. इतना समझा? कैसे लिखते हैं? Suppose I have over here this equation. तो जितने प्रोडक्ट है उन सबके एंथैल्पीज को ऐड करो, जितने रिएक्टेंट है उन सबके एंथैल्पी को ऐड करो, दोनों को आपस में से माइनस करो. इट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. अभी डेफिनेशन सुनो. द एंथैल्पी ऑफ केमिकल चेंज इज द डिफरेंस between the sum of the enthalpies of the product and that of the reactants. इतना क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? The enthalpy of chemical reaction is the difference between sum of enthalpies of product and that of enthalpies of reactant. Correct? With each substance, हर एक substance को involve किया ना? With each substance in a definite physical state, मतलब वो ये solid है, liquid है, gas है, वो भी ध्यान में रखना है. In a definite physical state, and their amounts are represented by coefficients in the balanced chemical equation. Coefficient क्या है यहाँ पे? Small a, small b, small c, small d. अभी मैं दूसरा example लेती हूँ, ठीक है? I will write down here 3a plus 4b C plus 2D. मैंने आपको बोला इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखो. आप कैसे लिखोगे? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू C. सिर्फ C लिखेंगे ना क्योंकि कुछ है नहीं, तो HC लिखेंगे. एंथैल्पी ऑफ C प्लस 2 into एंथैल्पी ऑफ D माइनस 3 into एंथैल्पी ऑफ A प्लस 4 into एंथैल्पी ऑफ B. समझा अभी कैसे लिखते हैं? तो ये जो 3, 4, 1, 2 ये क्या है? These are the coefficients which are representing the amount present in a balanced chemical equation. इसको बोलते हैं
एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? पहले इतना बोलो। मिस ये समझा, अंडरस्टूड? बट ये एच एच ए एच सी एच एच क्या है वो? हाँ, ये जो है एंथैल्पीज है। एंथैल्पी कल किया था ना, एच स्टैंड्स फॉर एंथैल्पी। So these are the enthalpies of product and the enthalpies of reactant. So difference between the enthalpies of product and the enthalpies of reactant with respect to every substance. ठीक है, with respect to every substance, and their amounts are represented by balanced chemical equation, coefficients of the balanced chemical equation. इस तरह के लिखने को हम क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। समझा? अब अगर मैं कहती हूँ आपसे कि समेशन ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन समेशन ऑफ रिएक्टेंट, डेल्टा एच आर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? बोलो। अगर ये वैल्यू बड़ा आता है, ये छोटा आता है, ये 50 है, ये 25 है, आंसर है 25, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है। यस और नो? So this is यस called मिस। as endothermic reaction. अब उल्टा करते हैं। Summation of product is smaller than summation of reactant. अब बोलो डेल्टा आर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा? अब ये 25 है, ये 50 है, नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव तो ये मेरा रिएक्शन क्या हो गया? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। बस इतना ही है, कुछ ऐसे बहुत ग्रेट साइंस नहीं है बच्चों, एकदम सिंपल है वो। आया समझ में मैंने क्या बोला? नहीं समझा क्या? ये एंथैल्पी ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री नहीं समझा? एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, जो भी रिएक्शन दिया रहेगा ना उसको इस फॉर्म में लिखने का, और ये डेफिनेशन है। इट इज द सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एवरी सब्सटेंस। अगर ए बी सी डी होता है इधर, ई एफ जी एच आई होता है इधर, तो सबके बारे में लिखते हैं। ठीक है? सो दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। और ये स्मॉल एबीसीडी क्या रिप्रेजेंट करते हैं? These are the coefficients which are present in the balanced chemical equation. अभी समझा कि नहीं समझा? इतना बोलो पहले, देख लो एक बार अच्छे से। नहीं समझा रहेगा तो पूछो। Everybody understood? If you have understood, just give me a quick yes. मिस वो लिखा है वही डेफिनेशन है ना, सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ हाँ एंथैल्पीज हाँ ऑफ हाँ, मैं रिएक्शन। बताती हूँ। यस यस, मैं बताती हूँ। जितने डेफिनेशन है ना वो मैं लिख के दूंगी, खाली थ्योरी तुम लोग को ना अब घर पे पढ़ना है, क्योंकि थ्योरी में नहीं लिखा सकती बच्चों, बहुत सारा थ्योरी है। जितना पॉसिबल होगा ना डेफिनेशन और उसके न्यूमेरिकल्स, वो सब मैं मैक्सिमम ले लूंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है? इतना समझा सबको? पहले इतना बोलो। चलो हेडिंग लिखो अभी, पहले एक एक करते हैं ना। लिखो हेडिंग, थर्मोकेमिस्ट्री। लिखो, thermochemistry deals with enthalpy change in chemical reaction. Thermochemistry deals with enthalpy changes in chemical reactions. लिखा? अब उसके नीचे लिखो enthalpy of chemical reaction enthalpy of chemical reaction delta RH. इतना हो गया? अब पहले उसका डेफिनेशन लिखो। The enthalpy of chemical reaction is
very important, huh? The enthalpy of a chemical reaction is the difference between the sum of enthalpies of product, the sum of enthalpies of products, and that of reactants, and that of reactants, and that of reactants with each substance in a definite physical state, with each substance in a definite physical states and their amounts are represented by coefficients in the balanced chemical equation. Coefficients in the balanced chemical equation. इसके बाद लिखो, consider the equation a of a plus b of b gives you c of c plus d of d. और उसके बाद ये स्टेटमेंट लिखो, ये यहाँ तक, ये कहाँ तक लिखोगे, इधर तक लिखो. डेल्टा आर ऑफ रिएक्शन, ये पूरा कैसे करने का, देखो ये दोनों ए है ना, उसके बीच में एच घुसा देने का. ये बीबी है, इसके बीच में एच घुसा दिया. सी सी एच, डी डी एच. तो पहले प्रोडक्ट लिखेंगे, बाद में रिएक्टेंट लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे, ये पार्ट डेल्टा एच आर ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट. 25-50 मत लिखना, फिर सबसे पहले ये ऊपर का लिखना है. पूरा लाइन से 1 2 3. ये स्मॉल लेटर से वो नंबर ऑफ मोल्स है ना. यस करेक्ट. जो स्मॉल लेटर्स है वो हम लोग बैलेंस करने के लिए लगाते हैं ना, 2 3 5, वो नंबर्स है. 3 ही लाइन लिखो, आप पहले समेशन तक ही लिखो. डन बच्चों? ओके. अब लिखो वेयर, उसके नीचे लिखो वेयर A, B, C, D are the coefficients of balanced chemical equation. Coefficients मतलब जो बैलेंस करने के लिए यूज होता है. HA, HB, HC and HD are molar enthalpies. क्या ये molar enthalpies of A, B, C, D respectively. Small ABCD क्या है? Coefficients of the balanced chemical equation. और HA, HB, HC, HD क्या है? Molar enthalpies of किसका? ABCD respectively.
हो गया? समझ रहे हैं सबको? Yes, ma'am. किसी को कुछ डाउट हो रहा है, डिफिकल्ट जा रहा है, प्लीज पूछो, डोंट हेजिटेट। इसके ऊपर नहीं न्यूमेरिकल्स भी मिस, है समझा। बच्चों। हाँ, क्योंकि उसके ऊपर ना न्यूमेरिकल्स भी है, तो अभी नहीं समझ में आएगा, न्यूमेरिकल्स में गड़बड़ हो जाएगा। और ये सब चैप्टर्स बहुत स्कोरिंग है बच्चों। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा लगेगा अरे क्या है, कितना न्यूमेरिकल है, कितना डेफिनेशन है, बट आप लोग को बाद में पता चलेगा यही चैप्टर साथ देते हैं। ऑर्गेनिक हमेशा धोखा दे देता है, क्योंकि अगर एक रिएक्शन भूल गए, एक मॉलिक्यूल भूल गए, एक आप रिएजेंट भूल गए, तो उधर गड़बड़ हो जाती है। लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री हमेशा बचा लेता है। डन? हाँ मिस, मुझे भी वो चलो ऑर्गेनिक अभी पसंद नेक्स्ट क्या लिखेंगे? नहीं पसंद नहीं, बच्चा ऐसा नहीं, और उसमें बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बहुत ज्यादा। ये कैसे एक बार दिमाग में बैठ गया ना तो भूलता नहीं है, जल्दी से याद रहता है अच्छे से। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक कैसे होता है देखेंगे, ठीक है? केस लिख देती हूँ, केस 1। इफ summation of product is greater than summation of क्या, reactant, डेल्टा आर एच क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना। therefore the reaction is क्या होगा, एंडोथर्मिक। अभी एंडोथर्मिक सबको पता है ना, स्कूल से किया है। व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन? इन विच हीट इज एब्सॉर्ब्ड। केस 2 तुम लोग लिखो चलो। इफ summation of product is smaller than summation of reactant, delta HR will be negative, reaction will be exothermic। आई होप इतना सबको अच्छे से समझ में आया। किसी को कुछ पूछना है अब भी पूछो एकदम फटाक से। मिस। ये समेशन ऑफ प्रोडक्ट है ना, वो मिस क्या है, मतलब क्वांटिटी, प्रोडक्ट का क्वांटिटी है क्या? नहीं, ये देखो ये क्या लिखा है इधर, समेशन कब डालते हैं कि जितने भी प्रोडक्ट थे यहाँ पे, किधर गया, जितने भी प्रोडक्ट थे यहाँ पे, ये जितने भी प्रोडक्ट थे सबको ऐड करके लिखा ना, तो हर बार लिखने की बजाय इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। कैसे कल इंटीग्रेशन बताया था कि लोअर लिमिट टू अपर लिमिट जाते हैं, अपर लिमिट टू लोअर लिमिट जाते हैं, वैसे ए बी सी डी ई एफ। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, समेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो जितने भी प्रोडक्ट है उन सबका एडिशन, जितने भी रिएक्टेंट है उन सबका एडिशन। तो समेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, इट इज एडिशन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट एंड एडिशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट। समझा? समझा मिस। वो एक तरह का नोटिफिकेशन होता है। चलो अभी आगे बढ़े। किसी को कुछ डाउट है? आर यू श्योर एवरीबडी इज कंफर्टेबल विद दिस पार्ट? लेट मी नो बच्चों, अगर आपको नहीं समझा तो आई विल एक्सप्लेन इट टू यू अगेन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ के करो, लेकिन बस इतना मेरा मानना है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि थर्मोडायनामिक स्टैंडर्ड स्टेट्स क्या होते हैं, ठीक है? मेरा पेन कहाँ चला गया? अभी ना जैसे जो आपने पढ़ा सब सेम रहेगा, और कुछ स्टेट्स है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब इसको मिस ये लिखे स्टैंडर्ड अभी लिखा, ऊपर। नहीं ये लिखा नहीं, केस नहीं लिखा, केस लिखा कि नहीं, केस 1 केस 2 ये लिखना है, नहीं केस 1 मिस। केस 2 लिख लो। हाँ लिख लो लिख लो। मैं आपको बहुत स्लो पढ़ा रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से कंफर्म हो जाएगा, तो न्यूमेरिकल्स भी फास्ट कर पाओगे। ऐसे कुछ बहुत बड़ा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। नाउ वी आर ऑन पेज नंबर, बताती हूँ, 76, और टोटल पेज नंबर है इसमें आई गेस 86। हाँ 86 87 ऐसा कुछ, 86 है बराबर। तो हर दिन अगर 2-2 पेज भी किया ना हम लोगों ने, 2 से तो ज्यादा ही होता है अपना, बट इन केस 2-2 पेज किया, मॉर्निंग में 2 पेज, इवनिंग में 2 पेज, तो अपना 5 दिन में हो जाएगा, 5 लेक्चर्स में।
विथ न्यूमेरिकल्स अच्छे से एकदम। तो आपके पेपर 1 के 4 चैप्टर्स हो जाएंगे ना बच्चों। 2 तो मैंने ले लिए, एक सर ने लिया था, ये चौथा है। और पेपर 2 में भी आपका काफी कुछ हो गया है। हो जाएगा आप लोग का दिवाली के पहले आराम से। फिनिश्ड क्या बच्चों? डन। ओके चलो अभी देखो क्या होता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अभी डेल्टा एच आर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन था। डेल्टा एच आर नॉट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। समझा? जैसे हम लोगों ने करा था कल, सपोज डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, डेल्टा एच नॉट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो आपको सिर्फ नंबर्स क्या लगा, वर्ड क्या लगाना है, स्टैंडर्ड इफ यू आर ऑब्जर्विंग नॉट ओवर हियर। ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड कंडीशंस होते क्या है देखो। उन्होंने बोला इफ यू आर यूजिंग solids or liquids or gases, whatever it is, it should be always in the purest form. Temperature should be 25 degrees Celsius. Pressure should be 1 atmosphere. Concentration should be 1 molar. अगर ये चारों कंडीशंस फॉलो होती है तो हम कहेंगे कि मेरा जो भी रिएक्शन हो रहा है वो स्टैंडर्ड कंडीशन में हो रहा है। आपके बुक में भी यही दिया हुआ है, सब्सटेंस शुड बी मोर स्टेबल इन द प्योर फॉर्म। 25 की जगह उन्होंने लिखा है 298 केल्विन। प्रेशर की जगह लिखा है 1 बार। सेम ही हो गया कि नहीं बोलो? 25 प्लस 273 298 हो गया ना। 1 एटमॉस्फेयर 1 बार ऑलमोस्ट सेम है। 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो जब ये कंडीशंस फॉलो होती है दैट टाइम आई एम गोइंग टू राइट डाउन इट इज अ स्टैंडर्ड स्टेट। इतना क्लियर? अभी अगर मैंने आपको बोला स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो आप क्या बोलोगे? इट इज everything is same, but what is happening, all the changes all occur when the reactants and products are in their standard state. ठीक है। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कैसे डिफाइन करेंगे? द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज द एंथैल्पी चेंज that accompanies a reaction when all the reactants and products are in their standard state. अभी स्टैंडर्ड स्टेट आपको स्पेसिफाई नहीं करना है हमेशा, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। क्या दिमाग में होना चाहिए? ये 4 कंडीशंस फॉलो हो रही है भाई। ये प्योर है, टेम्परेचर 25 है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार है। तो जैसे मैंने यहाँ पे नॉट लगा दिया इट इज अंडरस्टूड कि ये चारों कंडीशंस फॉलो हो गई। इतना क्लियर? समझ आया स्टैंडर्ड एंथैल्पी किसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशंस किसको बोलते हैं? समझ में आया? तो सबसे पहले ना यहाँ पर स्टैंडर्ड कंडीशन लिखो। 1 2 3 4 6 तो ये लिखेंगे तो भी चलेगा, ये लिखो। उसके बाद मैं आपको डेफिनेशन देती हूँ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का। ठीक से पढ़ के आपको आंसर करना है। एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन पूछा तो जो पहले वाला था वही। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन बोला तो आप क्या लिखोगे? एक ही स्टेटमेंट ऐड करना है, when all the reactants and products are present in their standard states। ये सब लिखना कुछ नहीं है, खाली बोलना है कि they are present in their standard states। समझा?
पहले ये स्टैंडर्ड कंडीशन लिखो चारों फटाफट एकदम, और इसको ऐसे मार्क करके रखना, किधर पे भी भूलना ही नहीं है वो। फिर मैं आपको थर्मोकेमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो बताती हूँ। मिस आपने ये बॉक्स के बाहर ऐसा यूनिट लिखा है क्या? नहीं नहीं, हाँ मतलब ये ना टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है ऐसा। ये भी सही है, ये भी सही है, तो जो भी चाहिए वो फॉलो कर सकते हो। मैंने डिग्री में लिखा है, उन लोगों ने केल्विन में लिखा है, मैंने एटमॉस्फेयर लिखा है, उन लोगों ने बार लिखा है। दोनों भी सेम ही है, कुछ इतना डिफरेंस नहीं है। अभी आप लोग ईएमएफ पढ़ोगे ना, ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, अगर मैंने लिख दिया सपोज ईएमएफ ऑफ द सेल ये है, ईएमएफ ऑफ द सेल, तो अगर मैंने इसके आगे नॉट लिख दिया तो इट इज स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, ऐसा हो जाता है। तो स्टैंडर्ड मतलब ये चारों चीजें सब जगह फॉलो होती है, which is called as standard thing. मिस वो ये नॉट मतलब स्टैंडर्ड होता है क्या? स्टैंडर्ड कंडीशन, ये चारों कंडीशंस फॉलो हो गई इसलिए नॉट। तो आपको अगर जैसे नॉट दिखाना तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ भाई ये स्टैंडर्ड स्टेट में है। बताने का नहीं किधर पे भी कि क्या स्टैंडर्ड स्टेट है, बोल देने का कि दे आर प्रेजेंट इन द स्टैंडर्ड स्टेट। समझा? चलो हेडिंग लिखो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा आर एच नॉट। बोलू बच्चों, आज सब लोग बहुत ऐसे सुस्त लग रहे हैं, बहुत कम लोग आंसर कर रहे हैं, क्या बात है? बोर हो रहा है क्या तुम लोग को? तुम लोगों ने ही बोला था थ्योरी सिखाओ, तो मैं थ्योरी सिखा रही हूँ। मिस ये लोग ने बोला था मिस, मैंने बोला था ना आपको न्यूमेरिकल्स लेने कल। ठीक है, लेकिन ये इजी है, ऐसे इतना बोरिंग नहीं है, है ना? मिस ये लोग को सॉल्व नहीं अभी करने का कैसे रहता है ना, करेंगे इसके पता है लिए ये लोग इसका बोलते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सॉल्व तो करना है ही वैसे भी। ये थोड़ा थ्योरी हो जाएगा ना, फिर मैं बोलती हूँ न्यूमेरिकल्स का, तो फिर बहुत सारा न्यूमेरिकल करेंगे, 2-3 लेक्चर न्यूमेरिकल में ही जाने वाला है। पेज नंबर 80 तक हो जाएगा ना अपना हेस लॉ, उसके बाद भर भर के न्यूमेरिकल्स ही करेंगे, 2-3 लेक्चर, मॉर्निंग इवनिंग ऐसे। उसके बाद में आगे का पार्ट सिखाऊंगी, डोंट वरी। चलो बोलू क्या बच्चों, राइट डाउन। The standard enthalpy of reaction is the enthalpy change. The standard enthalpy of reaction is the enthalpy change that accompanies the reaction when the reactants and products involved are in their standard states. The reactants and products involved are in their standard states. अभी देखो मैंने बोल दिया in their standard states, so that's understood कि what are those standard states. यहाँ तक सबको समझ आ गया? Enthalpy of solution, thermochemistry में enthalpy of reaction and standard enthalpy of reaction. Clear बच्चों? Give me a very quick yes. चलो ओके, पक्का किसी को कुछ पूछना नहीं है?
ठीक है, चलो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ टू राइट डाउन द थर्मोकेमिकल इक्वेशन। रुको पेज टर्न करती हूँ मैं। जैसे आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेशन होता है, थर्मोकेमिकल इक्वेशन होता है, वैसे ही बहुत अलग अलग टाइप के इक्वेशंस होते हैं। Now we are going to study how to write down the thermochemical equations, conventions to write down the thermochemical equations, or you can say rules to write down the thermochemical equation. देखो, सबसे पहले आपका रिएक्शन बैलेंस्ड होना चाहिए। इट शुड बी बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है? योर रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। पॉइंट नंबर 2, the enthalpy change is given on the right hand side and this value is, अभी जैसे मैंने कोई इक्वेशन लिखा, suppose a of a plus b of b gives you c of c and d of d, तो इसका जो भी एंथैल्पी है सेम लाइन में on the right hand side you are supposed to write down like this, जो भी वैल्यू है यहाँ पे लिखने का, ठीक है? whether it is positive or negative or anything। अच्छा, इतना क्लियर हुआ बच्चों? So whenever you are writing, it should be a balanced equation, and then what you have to write down, equation लिख के उसके right hand side पर ही आपको उसका एंथैल्पी चेंज का वैल्यू लिखना है, whether it is positive negative। याद है हम लोग ने कल भी लिखा था ना, वाटर का सबके आगे ही लिखा था। अच्छा, कुछ बच्चों का सवाल ये होता है कि if this अगर ये लाइन भर गई तो क्या करने का? देखो ब्लर हो गया क्या? अगर ये लाइन भर गई तो क्या करने का? ये भर गई ना, तो उसके सेकेंड लाइन में नीचे ही राइट हैंड साइड पे ही लिखना है कि वो इस इक्वेशन का ये है, ठीक है? थर्ड थिंग, यू हैव टू स्पेसिफाई द फिजिकल स्टेट्स, ठीक है? तो सॉलिड होगा S लिखो, लिक्विड होगा L लिखो, गैसियस होगा G लिखो, एक्वियस होगा AQ लिखो, ठीक है? तो यू हैव टू स्पेसिफाई देयर फिजिकल स्टेट। ये तो स्कूल में भी किया था ना बच्चों, किया था कि नहीं? यस मैम। हाँ, एक मिनट ना बच्चा। एक सेकेंड ना बच्चों, प्लीज गिव मी 1 सेकेंड।
है बच्चों? तो क्या बोला मैंने, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव अ बैलेंस्ड इक्वेशन। सेकेंड थिंग, व्हाटएवर द इक्वेशन यू आर राइटिंग उसका डेल्टा एच राइट हैंड साइड पे लिखना है। यू हैव टू स्पेसिफाई द साइन आल्सो, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव हुआ तो एंडोथर्मिक, नेगेटिव हुआ तो एक्सोथर्मिक। ठीक है, you are supposed to specify the physical states, solid, liquid, gaseous, aqueous, whatever it is. ठीक है, after that most important point, अगर आपका साइन, ये वही बोला है मैंने, अगर वो फॉरवर्ड रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है और एंडोथर्मिक है तो वो लिखना है, वो नेक्स्ट पॉइंट पे उन लोगों ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट इज द कोएफिशिएंट इन्वॉल्विंग नंबर। अगर आपने पूरे इक्वेशन को किसी से मल्टीप्लाई किया, सपोज मेरा इक्वेशन है a प्लस बी गिव्स यू c प्लस डी, और मैंने यहाँ पे इसका डेल्टा एच लिख दिया सपोज x। तो अगर मैंने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 2a प्लस 2b 2c प्लस 2d हो जाएगा। करेक्ट? तो मैं इस x को भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। समझ आ गया? इफ यू आर मल्टीप्लाइंग योर इक्वेशन बाय सम नंबर, डेल्टा एच विल आल्सो विल गेट मल्टीप्लाइड। इफ यू आर डिवाइडिंग दिस बाय सम नंबर, ये भी डिवाइड होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। आया समझ में? दीज आर द रूल्स फॉर राइटिंग दी थर्मोकेमिकल इक्वेशन। क्या क्या रूल है फटाफट बोलो। बैलेंस इक्वेशन होना चाहिए। इक्वेशन बैलेंस है तो उसका आप लिखने के बाद राइट हैंड साइड पर यू आर सपोज टू एड इन डेल्टा एच का वैल्यू। थर्ड इज द फिजिकल स्टेट्स हैज टू बी मेंशन्ड। if it is positive or negative, you are supposed to specify, because positive represents endothermic reaction, negative represents exothermic reaction. ठीक है? If you are going to multiply your equation by some factor, or if you are going to divide them by some factor, delta h value will also be multiplied or divided. ठीक है? If you are reversing your equation, c plus d a plus b कर दिया, तो डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम बट साइन विल चेंज। समझ आया? गॉट अगर एवरीबॉडी? रिवर्स किया तो व्हाट ना, आर द कन्वेंशंस? इफ यू आर रिवर्सिंग योर इक्वेशन, योर magnitude of delta h will remain same but its sign will change. These are the conventions while writing the thermochemical equation. इतना सबको समझ आ गया अच्छे से? कुछ डाउट है क्या? बोलो मुझे। हेलो, क्या समझ आ गया? यस मैम। हाँ चलो एक क्वेश्चन देती हूँ तुम लोग को मैं। हाँ, आई हैव अ थर्मोकेमिकल इक्वेशन C2H2 in the gaseous state, 5/2 oxygen in the gaseous state. You will get here 2 CO2 which is also in the gaseous state and H2O in the liquid state. इसका डेल्टा एच नॉट दिया हुआ है -1300 किलो जूल्स। ये आपका इक्वेशन है। आपको करना क्या है? फर्स्ट थिंग, मल्टीप्लाई दिस बाय फैक्टर 2 एंड सेकंड करना है रिवर्स द इक्वेशन और मुझे आंसर बोलना है। समझा? क्या करना है आपको? समझ आ गया? दिस इज द इक्वेशन. You have to multiply this equation by 2 and after multiplying you are supposed to reverse this equation and then you have to tell me your answer. आएगा समझ में क्या करने का? Did you get this? मिस आपको मतलब पूरा Yes रिएक्शन लिख के or देना है no? हेलो हेलो या फिर हेलो, सिर्फ डेल्टा एच? अरे क्या हुआ है रे सबको? आज सोए हैं लगता सब आज। मैम सुनाई नहीं दे रहा आपको? हेलो बच्चों, कैन यू हियर मी? यस हेलो, अच्छा मेरे को नहीं सुनाई दे रहा कुछ भी।
अच्छा रुको, शायद मेरा एयरपोर्ट का ना चार्जिंग खत्म हो जाएगा, रुको 1 मिनट यार। रुको रुको। जैसे वाईफाई चला गया क्या? वाईफाई नहीं है? एक मिनट रुको बच्चे जरा। ये कनेक्ट हो गया। हाँ क्वेश्चन। हेलो, अभी हेलो बोलो बच्चों। हेलो हेलो हाँ मिस। अभी आ रही है आवाज? हाँ, अरे वो दूसरा हाँ डिवाइस अभी आ रही। कनेक्ट हो गया था। एक साथ दो दो डिवाइस कनेक्ट हो गया तो किधर का आवाज किधर जा रहा था, तो मुझे समझ ही नहीं रहा था आवाज। अभी देखो क्वेश्चन क्या पूछा है मैंने। दिस इज द इक्वेशन, यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2 एंड यू हैव टू रिवर्स द इक्वेशन। आएगा करने को? चलो करो। यस मैम हो गया। हो गया सबका? सबका हो गया? मिस आपको फाइनल क्या बताना है, ये इक्वेशन बताना है? हाँ, तो इक्वेशन क्या है? 2C2H2 प्लस ये 5 हो जाएगा, है ना? 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 5 ऑक्सीजन हो जाएगा। ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ये 2 नहीं, सिर्फ नहीं, मल्टीप्लाई बाय होगा तो 4 हो जाएगा ना। 4 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, 2 वाटर हो जाएगा, और डेल्टा एच नॉट कितना हो जाएगा? -2600 किलो जूल्स हो जाएगा। इज इट राइट? सबका यस मैम। बराबर है? यस मिस। हाँ, अब इसको रिवर्स करेंगे तो 4CO2 2H2O 2C2H2 5O2 और ये हो जाएगा +2600 किलो जूल्स। सबको समझा अभी कैसे करते हैं? क्योंकि आगे जाके यस एक मैम। हेस्ट लॉ है, वहां पर ये सब बहुत सारी चीजें प्रूफ करने के टाइम पर sometimes you have to reverse the equation, sometimes you have to divide the equation, sometimes you have to multiply the equation। तो बच्चे लोग क्या करते हैं पता है? यहाँ तक बिल्कुल सही करते हैं, इसको अप्लाई करना भूल जाते हैं तो आंसर रॉन्ग हो जाता है। इसके लिए इस तरह से किया जाता है। अंडरस्टूड एवरीवन? तो अभी आज क्या क्या पढ़ा पहले ये बोलो। हमने पढ़ा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, उसके बाद हमने पढ़ा थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ा व्हाट इज द heat of the chemical reaction or enthalpy of the chemical reaction. Then we have studied what is standard enthalpy of the reaction and what are the standard conditions. उसके बाद हमने पढ़ा what are the conventions for writing the thermochemical equation. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? Is it very clear to everybody? चलो अभी नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं। एक है एंथैल्पी, स्टैंडर्ड मिस वो नीचे एंथैल्पी का ऑफ लिखना फॉर्म। था। कौन सा लिखा ना तुम लोगों ने? ये आंसर ही लिखा है मैंने इसका। हाँ हाँ मिस वो तो लिखा। लिखा है ना? हाँ लिखा है ना। चलो अभी हम लोग को क्या पढ़ना है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एक पढ़ना है। चलो लेट मी चेक। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एक हो जाएगा इसमें से, वो पढ़ा देती हूँ। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन।
ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे बच्चों? डेल्टा एफ एच बराबर है, स्टैंडर्ड बोला मैंने, क्या करूं? डेल्टा एफ एच नॉट आएगा, समझा? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन delta FH not, because you're talking over here standard enthalpy of the formation. ठीक है, see how it works. पहले तो हम formation पढ़ेंगे. I will take hydrogen gas, half of oxygen gas gives you water in the liquid state. इसका standard enthalpy of formation है -286 किलो जूल. ठीक है, अब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता क्या है? The standard enthalpy of the formation is the enthalpy change that accompanies a reaction in which 1 mole of pure substance, pure word क्यों use कर रही हूँ? क्योंकि स्टैंडर्ड है ना. 1 mole of pure substance in its standard state is formed from its elements which are also in standard state. Am I right? Formation हो रहा है ना. If I want to make water, I have to take hydrogen and oxygen. I cannot take hydrogen and chlorine. What is that? जब आप एक मोल सब्सटेंस बनाते हो which in the purest form in the standard state, उसको बनाने के लिए भी आपने क्या यूज किया? Elements standard state. अभी standard क्यों specify कर रहे हैं? Because I have written over here not. What are the standard condition? All the physical states, liquid, solid, gaseous, should be in the purest form. Temperature 25 degrees Celsius. Pressure कितना होना चाहिए? 1 atmosphere. And concentration 1 molar. उसको बोलेंगे हम standard enthalpy of formation. इतना clear हुआ? So what I said, the enthalpy change that accompanies the reaction in which 1 mole of pure substance in its standard state is formed from its elements which are also present in the standard state. इतना clear? इतना समझ आ गया? Yes. Say yes or no बच्चों. हाँ, अभी देखो, अभी अगर हम कंसिडर करते हैं A of A, B of B gives you C of C and D of D. तो इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी कैसे हो जाएगा? सेम ना. C H नॉट ऑफ C, F लिख देंगे, प्लस D H नॉट F ऑफ D माइनस A H नॉट F ऑफ A प्लस B H नॉट F ऑफ B. ऐसे लिखेंगे ना. तो इन शॉर्ट अगर मैंने इसको समेशन वाले फॉर्म में लिखा, सॉरी डेल्टा डालना चाहिए था, आई एम सो सॉरी, इसको वापस लिख दो, सॉरी डेल्टा लिखना भूल गई. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल्स टू C डेल्टा F H नॉट ऑफ C प्लस D डेल्टा F H नॉट ऑफ D माइनस A डेल्टा F H नॉट ऑफ A प्लस B डेल्टा F H नॉट ऑफ B. ठीक है, तो इन शॉर्ट में ऐसे लिखूं, डेल्टा F H नॉट is nothing but summation of standard enthalpy of formation of products minus summation of standard enthalpy of formation of reactants. All are agree? Yes. सब जगह प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करने का सेम है कि नहीं? बोलो मुझे. एकदम सेम था, खाली डेफिनेशन अलग. इट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. समझा? चलो ये एक डेफिनेशन लिख लो. अभी लिखेंगे, शाम को लिखेंगे. क्या करने का है? डेफिनेशन शाम को लिखेंगे. ठीक है, कितना टाइम बचा है? 4 मिनट बचा है. अच्छा ठीक है, चलो शाम को लिखो. मुझे याद दिलाओ. हाँ, यहाँ से मैं मार्क करके रखती हूँ. स्टैंडर्ड एंथैल्पी समझ आया ना? स्टैंडर्ड एंथैल्पी सबको अच्छे से? प्लीज जो मैं आपको लिखा रही हूँ वो नोट्स का अलग बुक रखना प्लीज. इट्स अ रिक्वेस्ट. क्या होगा पता है? एग्जाम के टाइम पे बहुत गड़बड़ होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा कहाँ पे क्या लिखा है.
प्लीज बी केयरफुल, जस्ट कीप योर नोट्स, संभाल के बुक रखो, भले पढ़ो नहीं अभी, धीरे धीरे पढ़ो, लेकिन लिख के एक जगह पर रखो, ठीक है। मैं फास्ट तो नहीं जा रही हूँ ना बच्चों, सबको समझ रहे हैं अच्छे से? Yes, ma'am. हाँ ठीक है, कुछ भी डाउट होगा तो यू कैन आस्क। अभी मैं बता देती हूँ। नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 76। 76 क्या 77 का भी आधा हो गया अपना। शाम को मैं ले लेती हूँ, हेस लॉ तक ले लेती हूँ अगर होगा तो, एंड देन वी विल डू न्यूमेरिकल्स। आज नहीं हुआ तो कल ले लेंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। चलो देन वी विल मीट इन द इवनिंग शार्प 8 o'clock। ओके चलो एंड Bye, करती हूँ फिर ma'am. आगे। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योर डे, अटेंड योर लेक्चर्स। अच्छा मुझे एक बात बताओ, संडे के दिन तुम लोग शाम की बजाय थोड़ा दोपहर में ज्यादा टाइम तक बैठ सकते हो? जैसे अपना हाँ लेक्चर मैम। 10:30, हाँ जैसे अपना लेक्चर 10:30 to 12 होता है, तो शाम में 8 बजे आने की बजाय आप 10:30 to 1:30 बैठोगे। मैं बीच में आपको 10-15 मिनट ब्रेक दे दूंगी, चाहिए तो। हाँ चलेगा? सबको चलेगा? हाँ मैम मिस चलेगा। मतलब इवनिंग में नहीं और दोपहर में ना? हाँ मतलब 8 बजे जो रात को लेते हैं ना लेक्चर, उसकी बजाय मैं ऐसे बोल रही थी कि 10:30 to 12 हम लोग लेते हैं, तो तुम लोग 15 मिनट ब्रेक ले लेना बीच में 12:45 तक, और फिर 12:45 तक नहीं सॉरी 12:15 तक, और बाद में वापस से 1.5 आवर्स ले लेंगे, तो शाम को नहीं आना पड़ेगा। चलेगा? ओके मैम। सबको चलेगा? 100%? यस किसी को लेक्चर लेक्चर तो नहीं रहता है कॉलेज में? चलेगा ना? और सैटरडे भी चलेगा क्या? सैटरडे को ना, क्योंकि सैटरडे संडे क्या होता है, मुझे थोड़ा शाम के टाइम पे ना थोड़ा फ्री नहीं रहता है, तो मैं नहीं चाहती कि तुम लोग को नुकसान हो, इसलिए मैं सोच रही थी थोड़ा टाइमिंग ऊपर नीचे कर देते हैं। क्या बोलते हो, चलेगा? सैटरडे भी चलेगा ऐसा? मैम सैटरडे को मेरा कॉलेज का लेक्चर रहता है। मिस अच्छा लेक्चर्स अच्छा देते ठीक हैं। है, ठीक है ठीक है, सैटरडे फिर नहीं करते ऐसा, संडे करेंगे। चलेगा? सर को बोल देना तुम लोग, मैं भी बोलती हूँ सर को कि मैं ऐसे बोल रही थी संडे को हम लोग 10:30 to 12 बैठते हैं, बराबर? तो यू टेक ब्रेक, फिर हम लोग 12:15 से लेकर हाफ एन आवर कितना होता है, 1.5 आवर्स कितना होता है, 1:15 1:45 में 1:45 तक बैठेंगे। यू कैन टेक अ ब्रेक फॉर 15 मिनट्स, या फिर कंटिन्यूसली बैठो 10:30 to 1:30, और बीच में आई विल गिव यू ऐसे 5-10 मिनट का ब्रेक वॉशरूम वगैरह जाने के लिए। इफ यू आर अग्रीड देन ओनली, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ आपको, इट इज जस्ट आई जस्ट वांट योर सजेशंस। ताकि फिर चलेगा रात को मैम। 8 बजे तक नहीं रुकना पड़ेगा ना, जल्दी हो जाएगा, जल्दी फ्री हो जाएंगे, तुम लोग भी किधर आ जा सकते हो। हम्म? सर को बोलो कि यस। तुम लोग, मैं भी बोलती हूँ सर को, पक्का किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है, चलो फिर मैं भी बोलती हूँ सर को आज। चलो बाय बाय, टेक केयर। बाय।